हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। और अ मेजर लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ह्यूमन राइट. There is an incorporation of a bill of right in some earlier nation and in the charters and constitution in the Europe indicate that is a concept not be recent origin. Earlier Europeans charter is supporting to the idea of content to the fundamental freedom, where the is a Ganga Charter of 1215 to the Union of Arches in 1579 Netherlands and the British Bill of Right in 1689. That is the most important here. And this charter is a specified contain a freedom that one could be claimed if one had a particular status, and were not all the encompassing there, but rather is a conference upon to the individual. Over the next few countries, the idea of liberty is gradually separated from status and was viewed as a right to the pertaining to the all human beings. And this was also the time when the British colonies in Northern America stood for the independence and the drafts of their own Declaration of Independence in 1776. There is the most important here. 1776 is based on the idea of universal equality and the extent of the content is the inalienable right. This is a document where is eventually is incorporated into the American Bill of Rights and which are part of the USA Constitution. The international growth of concept can be demonstrated by the French Declarations of the Right of Man in 1789. The right of the 18th and 19th centuries can be termed to the classical right and related to the freedoms of the individual and were incorporated in many nation constitutions. Today, government provided new categories of right in the field of employment, education, health, and welfare. These are termed as a social right. The social rights were first embodied in the international regulation. For example, there is an International Labour Organization, means ILO, was founded to 1989 and was the originate of the various labor regulation. Here is the most important of the date of the human right. The 1215 is a Magna Carta and the 1776 American Declaration of Independence and Bill of Rights, and 1787 the Constitution of the United States, and 1789 is the French Declaration of the Right of Man, and 1946 a UNA Commission on Human Rights, and 1949 Universal Declaration of Human Rights, and 1949 is the Geneva Conventional, and 1950 is Europeans is the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. 1961 is the European Social Charter, and 1966 is the International Convention of Economic, Social and Cultural Right, means ICESC, the International Convention on Civil and Political Right, ICCPR. And the first is the option is a protocol for the convention of civil inhuman and degrading treatment of punishment, means UNCAT. 1993 is the Vienna Declaration of Programs of Action adopted at the World Conference on the Human Rights. The redemption is atrocities of the Second World War can be said to mark the start of their current era of human rights. For their indeed to view that it was up to the individual state and determine to how to treat its citizens. The preamble to be a charter of the United Nations is a reforms is a faith in a fundamental right. Article 1 of the UN Charter state that is a promoting and encouraging respect of the human right and for the fundamental freedoms for all without discrimination as a race, sex, language or religious is the ones of the purpose of United Nations. Thus, the human rights are element of concern to the international community and signatories to be UN charters undertake to the responsibility for the promoting the human right individually and collectively.
In 1946, the UN Commission on Human Rights was established, and less than 2 years it had drafted to the Universal Declaration. There is Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by the UN General Assembly, means UNGA, in 1949. In 1966, the International Covenant of the Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, together with the first and second optional protocol to the International Covenant on the Civil and Political Rights. This 5 document is a compromise to the International Bill of Human Rights. Thus, the internationally recognized human rights has become a new international standard of civilization. After the Second World War, there has developed as a body of international human rights code is a real forming the normally appeal idea of entrance to be shared standard of justice to qualify for a membership of the international communities. It has become a factor of political elites, and this standard of civilized behavior link national and international legitimacy. The visual rise of universal human rights culture is a gesture of moral progress and is an effective response for major threat to human dignity posed by modern political and economical trends. Winnings of the development with the rights of protectivity for the acceptable of development appear to be a gaining ground. That we are all the equal humans seem to be a more acceptable now with the currently slogan, all human rights for all, the world is one family. And to us Indian it is nothing new. We have to long deliver a Sarva Bhavanantu Sukhadam and Vasudeva Kutumbam come. There is a most important slogan for the Indian and international level slogan. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव अधिकारों के विकास के प्रमुख घटनाएं। देखिए, मानव अधिकारों के विकास की प्रमुख घटनाएं किस प्रकार देखी जा सकती है। कुछ प्राचीन जो है राष्ट्रीय चटरों का यूरोपों के संविधानों में अधिकारों की घोषणा को सम्मिलित करने से संकेत मिला है कि यह अवधारणाएं कोई नई नहीं है, यानी जो अवधारणाएं बनी है वो कोई पुरानी नहीं है। ये अवधारणाएं कई हद तक जो है हमारे समक्ष है। प्राचीन अगर यूरोपीय चरण में जो है मैग्ना कार्टा जो 1215 से लेकर 1579 में यूनाइटेड संघ और नीदरलैंड और 1689 से ब्रिटेन अधिकार बिल में मौलिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी मौलिक स्वतंत्रता के विषय में हर क्षेत्र में जो है अपना विचारधारा रखा गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकारों के जो है शास्त्रीय अधिकार भी कहा जा सकता है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंधित थे तथा जिन्हें कई राष्ट्रीय संविधान में दर्ज भी किया गया था। आजकल सरकारों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अधिकारों की नई श्रेणी प्रदान भी करती है और इस अधिकारों को जो है सामाजिक आधार ही कहा जा सकता है। सामाजिक अधिकारों के पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है नियमावली में सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कहते हैं 1919 में हुई और यह विभिन्न जो है श्रम संबंधी नियमों का जन्मदाता बना। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं 12 और 15 में जो है मैग्ना कार्टा बनाई गई थी। 1776 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर तथा अधिकार पत्र दिया गया था। 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान बनाई गई थी। 1789 में मनुष्य के अधिकारों का फ्रांस से घोषणा की गई थी और 1946 में जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों का आयोग का गठन भी किया गया था और 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पत्र भी दी गई थी। कहते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था। 1949 की जो नेवा संधि भी की गई थी और उसके बाद 1950 का जो मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय संघ भी बनाई गई थी, यानी एक तरह से संधि किया गया था। 1961 का यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र भी सम्मिलित किया गया था और 1966 का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी ऐच्छिक संधि भी इसमें सम्मिलित की गई थी। 1993 में मानव अधिकारों के विश्व सम्मेलन में पारित एवं विलियम घोषणा पत्र में कार्रवाई का कार्यक्रम
ये सारे मानव अधिकार जो थे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो हर एक देश ने घोषणा किया था और ये विश्वव्यापी थी। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण अत्याचारों के मानवाधिकार के युग का आरंभ करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मानव का बहुत ही हनन हुआ था और इसी समय से जो है इन सभी मानवाधिकारों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि इनसे इन विचारों पर जो है विराम लगाया गया कि यह राज्य का अधिकार है कि वह अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करे। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों के प्रति विश्वास को दोहराया गया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद में यह कहा गया कि मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना आदर को प्रोत्साहित एवं बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में से एक माना जा सकता है। इस प्रकार मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक न्याय संगत चिंता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्तक्षेप करने वाले देश मानवाधिकारों को जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रोत्साहित करने के दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग स्थापित किया। कहते हैं मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसे मानव के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता था। 2 वर्ष से कम अवधि में इस आयोग ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसने जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार भी कर लिया था। 1966 की सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय जो है संविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संविधा से वैकल्पिक प्रथम और द्वितीय संलेख अर्थात यह पांचों मिलकर मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय बिल का अंग के रूप में बन गया। अंततः इस घोषणा पत्रों ने कुछ विशेष स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित भी किया गया, जिन्हें एक विशेष प्रतिष्ठा के लोग ही प्राप्त कर सकते थे और यह सबके सम्मिलित नहीं करते थे, अतुल एक व्यक्ति को ही प्रदान किए गए थे। अगली कुछ सदियों में जो स्वतंत्रता का जो है विचार प्रतिष्ठा से जुड़ा हो गया और इसे सारे मानव जाति के अधिकारों के रूप में देखा गया। यही समय था जब ब्रिटिश उपनिवेश के विरोध में लहर उठी और परिणाम स्वरूप 1776 में वहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस स्वतंत्रता की घोषणा का आधार सार्वभौमिक समानता और कुछ हस्तांतरणीय अधिकारों का अस्तित्व था। इस सभी प्रपत्रों के अमेरिकी जो है अधिकार बिल में सम्मिलित किया गया, जो अमेरिकी संविधान का भाग था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता प्राप्त मानवाधिकार सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कूट को विकास मिला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए न्याय के साझे मानकों को पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी को दोहराया गया। सभ्य व्यवहार को यह मानक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैधता को परस्पर जोड़ते ही चले गए। सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संस्कृति का प्रत्यक्ष जो है उदय नैतिक प्रगति को दर्शाता है और यह आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक रवैये में से मानवीय गरिमा के लिए उत्पन्न हुए खतरे का प्रभावशाली उत्तर है। सतत विकास के लिए विकास के अधिकारों को परिक्षेप में देखने की प्रक्रिया को समुचित आधार मिल रहा है। हम सब सामान्य मानव हैं के विचार को आज अधिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें आधुनिक स्लोगन सभी मानवाधिकार सबके लिए है, पूरा विश्व एक परिवार है, मान्यता प्राप्त हो रहे हैं। हम तो बहुत समय से सर्वभौमत्व सुलक्षण तथा वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं, यानी भारत जो है सदैव वसुधैव कुटुम्बकम के में विश्वास करता है, यानी सभी को ये सामान्य अधिकार के रूप में ये सब देखा जा सकता है। तो ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसमें हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश किया मानव अधिकारों के रूप में, उनके 6 अधिकारों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। और भूलना आपने 2 बात नहीं है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के वीडियो को फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक को रिसर्च करोगे यूट्यूब पे तो शायद आपको ये यूट्यूब पे प्राप्त ना हो, क्योंकि वो आप रिसर्च करोगे तो वो वीडियो आएंगे जो पहले से यूट्यूब पे मौजूद हैं,
या काफ़ी फेमस हो चुके होते हैं वही वीडियो आती हैं। ठीक है, अगर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको जो होता है त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है होम पेज प्राप्त होता है, जिसमें आपको जो है वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो जो है सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको समझ भी सकते हो, ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हो।